Hello students, now we will start our next chapter, chapter number 6, electromagnetic induction. Okay, chapter number 6, electromagnetic induction. This is the unit number 4. Okay, ये जो है unit number 4 है, in which we are going to study electromagnetic induction and next chapter alternating current. First unit was your electrostatic, second current elasticity, third magnetic effect and magnetism, and now fourth we have the electromagnetic induction and alternating current. Okay. So we will start this chapter, electromagnetic induction. Okay. Now, what is electromagnetic induction? Okay. In the previous chapter, we have studied about the generation of magnetic field due to the current. Okay. जो करंट होता है उसके कारण क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. ड्यू टू द करंट मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड. ओके. Then the question arises, if its reverse is possible, means with the help of magnetic field can we create the current? मतलब मैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या हम करंट को क्रिएट कर सकते हैं? ठीक है. तो ये क्वेश्चन उस समय अराइज हुआ था. ऑस्टन एक्सपेरिमेंट आया था 1820 में. 1820 में ऑस्टन ने बताया था कि ड्यू टू द करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट दिस क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ द current can be created by the using the magnetic field. So in 1830, after just 10 years of the Austin experiment, Michael Faraday performed some experiments. Michael Faraday ने कुछ experiments करे थे and he shows that the current can be created by using the magnetic field. Okay, magnetic field की मदद से हम current को क्या कर सकते हैं, create कर सकते हैं. Okay, so he performed some experiments. उसने कुछ experiment perform करे थे और ये बताया था कि current can be created. But he pointed out a very important point that there should be change in the magnetic field. Okay, only magnetic field will not create the current. There should be what? Their magnetic field should be continuously changed. When magnetic field will be continuously changed, then the current will be induced. And he gave the name as the induced current. So what was the experiment? Let us see his 1-2 experiment. Okay, so he took a coil. And he put a galvanometer here. Now you know very well what is galvanometer. And he bring the magnet. उसने क्या करा, कॉइल ली, गैल्वेनोमीटर पुट किया और मैग्नेट को लेकर आया. यहाँ पे कोई सेल बैटरी नहीं है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल करंट सोर्स नहीं है. एंड दिस इज द मैग्नेट. नाउ वी नो वेरी वेल दैट द मैग्नेट हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेट जो होता है उसके आसपास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है. द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एज वी गो टू द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एंड देन अगेन द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस. मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. नाउ व्हेन ही ब्रिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड टू द कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओके, मैग्नेट के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दैट वी नो वेरी वेल. So this magnetic field line link with the coil. Okay, ये जो magnetic field line थी ये क्या होती है, इस coil के साथ link हुई. And he bring this magnet inside and then outside, inside and outside. Okay, so what happens, due to the change in the magnetic field there is a force is created. इस magnetic field के कारण एक force create हुई जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे EMF, electromotive force. Okay, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें एक फोर्स क्रिएट हुई और इस फोर्स के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेट्स द फोर्स टू मूव. ओके, जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर फोर्स मिलेगी तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे. ओके, सो दिस कैन बी डन बाय द बैटरी और सेल. बट अनदर वे हियर इज दैट इफ यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल, then what happens, the electrons get the force and they move in a particular direction and then that creates the current. इसमें क्या हो रहा है, current create हो रहा है. So what he observed that when the magnet is moved inside it deflects in one direction and when the magnet is moved taken out it deflects in the another direction. जब मैग्नेट को अंदर लेकर आ रहे हैं तो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जब बाहर लेकर जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन जो आई वो क्या आई, अलग डायरेक्शन में आई. तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ द करंट हैज चेंज्ड. Which current? Induced current. The direction of the induced current has changed. Okay, so he bring out the magnet and he observed that there is a current is induced. Then he put stationary. उसने क्या करा, मैग्नेटिक को यहाँ पे स्टेशनरी पुट कर दिया.
Okay, he put the magnet stationary and he observed that there is no deflection in the galvanometer. Why there is no deflection in the galvanometer? Magnetic field is there. अगर मैग्नेट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो होगी थी. सो फिर क्यों डिफ्लेक्शन नहीं हुआ? डिफ्लेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग. मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन नहीं हो रहा. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग. सो व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड शुड चेंज. ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए. ओके, सो दिस वाज द वन एक्सपेरिमेंट एंड मैनी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व. नाउ द मैग्नेट कैन बी स्टेशनरी. मैग्नेट स्टेशनरी हो सकता है और कॉइल को आप मूव कराएं. मतलब दोनों में से क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन थिंग शुड बी मूव. अगर आपने दोनों को स्टेशन रख दिया तो देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन एंड देयर विल बी नो करंट इंड्यूस्ड. ओके, सो व्हाट शुड बी देयर? देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल फॉर क्रिएटिंग फॉर करंट टू बी इंड्यूस्ड. ओके, एंड so this is the one experiment we performed. Then another one we performed one more experiment. Okay, so he took a coil and then he took a battery. ठीक है, इसने बैटरी लिया है. यहाँ से क्या होगा? करंट. द करंट विल बी इन द कॉइल बिकॉज ऑफ दिस बैटरी. ठीक है, करंट होगा. एंड देन ही टुक द अनदर कॉइल which is nearby to this coil and he put the galvanometer here. उसने क्या करा? यहाँ पर एक कॉइल ली और इसमें बैटरी लगाई, सेल लगाया, जिससे क्या होगा कि करंट क्रिएट होगा. ओके, करंट क्रिएट होगा. अब इस करंट के कारण क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. द मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड. नाउ दिस इज लाइक अ सोलोनॉइड. ये एक सोलोनॉइड की तरह है और सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी. कितनी होती है? P equal to mu naught Ni. Okay, so mu naught is the medium inside the coil, N is the number of turns and I is the current. So there is a magnetic field is created. Now he took another coil nearby to this coil. इस coil के पास में उसने दूसरी coil रखी. दोनों में फिजिकली कोई टच नहीं है, फिजिकली टच नहीं है यहाँ पे, और केवल ये इसके पास में रखी हुई है. ओके, इट इज प्लेस्ड नियर बाय द कॉइल एंड हियर वी हैव पुट द गैल्वेनोमीटर. यहाँ पे क्या है? गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है. देयर इज अ गैल्वेनोमीटर. नाउ he observed that in the same setup he performed two experiments. First he bring this coil outside and inside. Means ये जो था coil को पास में लेकर आना था और दूर में लेकर जाना. मतलब this coil is bring near to this coil and away to this coil and this is stationary. ये जो रखा उसने क्या रखा? Stationary रखा. So when he observed that there is a magnetic field and this magnetic field is linked. ये जो magnetic field थी इस coil से link हुई. When he put stationary, he said that he observed that there is a no deflection. Deflection कुछ भी नहीं हुई. फिर उसने क्या करा? इसको दूर लेके गया. जब उसको दूर लेके गया तो देखा कि गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन. There is a deflection in the galvanometer. And when he bring nearby to this coil, again he observed there is a deflection. But when he put stationary, there is a no deflection. So why it happens? Because as he bringing far this coil from this coil, then what happens? The magnetic field changes. Magnetic field क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है. जैसे इस coil magnetic field पास में ज्यादा होगी और फिर जैसे दूर जाएंगे तो magnetic field कम होगी. तो जब ये coil को दूर लेके गया तो magnetic field क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. Magnetic field decrease हो रही है. That means there is a change in the magnetic field. And when he bring closer to this coil, then he observed that the magnet deflection. Why? Because the magnetic field again increase. Which magnetic field? The magnetic field linked to the coil. Magnetic field linked to the coil. Okay. Then he observed that it is not necessary that the magnetic field is created only by the magnet. ऐसा नहीं कि केवल मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. दो कॉइल के बीच में भी हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा सकते हैं. सॉरी, करंट इंड्यूस करा सकते हैं. वी कैन इंड्यूस द करंट. सो करंट कैन बी इंड्यूस्ड विदाउट द मैग्नेट, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट ही ऑब्जर्व, ही पुट स्टेशनरी. अब उसने क्या करा? इसको स्टेशनरी पुट करा और उसने देखा कि जब
there is a when suppose यहाँ पे एक हम स्विच ले लेते हैं, ठीक, we took a switch. As this switch is on, जैसे ही स्विच को ऑन करा, there is a deflection for the very short time in the coil. कॉइल में क्या हुआ, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। और जब इसने थोड़ी देर बाद जब स्टार्ट करा तो देखा डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन फिर वापस जो गैल्वेनोमीटर है वो अपनी पोजीशन पे आ गया, डिफ्लेक्शन हुआ और ये अपनी पोजीशन पे आ गया। नाउ ही ऑब्जर्व देयर इज अ नो डिफ्लेक्शन, एंड व्हेन ही ओपन द स्विच देयर इज अ डिफ्लेक्शन, बट अगेन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एंड अगेन द गैल्वेनोमीटर कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुआ इस कॉइल में। व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज एज द करंट इज पास्ड, करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग, करंट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ इस कॉइल में। करंट जैसे जैसे इंक्रीज होने लगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ने लगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही थी वो भी बढ़ने लगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और जैसे करंट इसमें स्टडी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा वो जीरो हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स there will be magnetic field, but the change in the magnetic field will become zero, so there is no deflection in the galvanometer. And as it is switched off, what happens, again there is a no deflection, again as it is switched off there is a momentary deflection. Why? Because the current is decreasing, current जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे करंट कम होते जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होते जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम होते जा रही है, so there is a change in this magnetic field linked to the coil. So again there is a deflection in this coil, in the deflection in the galvanometer. So when you are switch on or switch off, then there is a deflection in the galvanometer. So he observed that by his some experiments that there is a magnetic field, there is a current is induced due to the change in the magnetic field. Okay, and later he gave this phenomena as the electromagnetic induction. और इस फिनोमिना का उसने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी विल स्टडी हिज टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड दिस वी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, उसने इसको कंबाइन कर दिया क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो ही कंबाइंड द फिनोमिना एंड ही गिव द नेम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, so these are the experiment which prove there is a current is induced due to the change in the magnetic field. Okay, thank you.